Dear students, some another properties of inverse trigonometric functions. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y, 1 minus xy. Since range of tan inverse x lies between minus pi by 2 to plus pi by 2, so its minimum value will be minus pi by 2 plus pi minus pi by 2. It means minus pi, and maximum value will be pi plus pi by 2 plus pi by 2 pi. It means this function lies between minus pi to pi, but principal value of tan inverse x lies between minus pi by 2 to plus pi by 2. So this function is defined, all these functions is defined on its principal branch, only its principal branch. While so first tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, when tan inverse x lies between minus pi by 2, tan inverse x and tan inverse y lies between minus pi by 2 to plus pi by 2, is that xy into y is less than 1. इसका डिटेल आगे एक लेक्चर में दूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इसकी जरूरत होगी, हमें सिर्फ इतने की जरूरत है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हाउ टू प्रूव इट. तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy. लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा एंड tan इनवर्स, सो अल्फा x इक्वल टू tan अल्फा. अगेन tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा, सो y इज इक्वल टू tan बीटा. Since according to trigonometrical function we know that tan alpha plus beta is equal to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. Now substitute values of alpha, beta, tan alpha, tan beta. Then we get tan of alpha, tan inverse x, beta, tan inverse y is equal to tan alpha x and tan beta y, so x plus y upon 1 minus xy. Now implies that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट. सेकेंड है tan inverse x माइनस tan inverse y. tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus x into y, where for all x is greater than y. यहाँ पर tan inverse x में x का टर्म ग्रेटर होना चाहिए y से. तो सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि tan inverse x इक्वल टू अल्फा, then x इक्वल टू tan अल्फा, tan inverse y is equal to beta, so y is equal to tan beta. Now apply formula tan alpha minus beta, then it will be tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha into tan beta. Substitute values, we get tan of tan inverse x minus tan inverse y is equal to x minus y upon 1 plus xy. So tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. इसको आप लोग कर लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx. हमने सपोज किया था, tan सपोज कर लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, सो x इक्वल टू tan अल्फा. tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, सो y इक्वल टू tan बीटा, एंड tan इनवर्स z इक्वल टू गैमा, so z equal to tan gamma. Since tan alpha plus beta plus gamma ये फार्मूला होता है tan का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan alpha plus beta plus gamma is equal to tan alpha plus tan beta plus tan gamma upon 1 minus tan alpha into tan beta minus tan beta into tan gamma minus tan alpha into tan gamma, tan alpha into tan gamma. Now substitute value of alpha, beta, gamma and tan alpha, tan beta, tan gamma. Then we get tan of tan inverse x, tan inverse y plus tan inverse z equal to
x plus y plus z upon 1 minus xy minus yz minus xz. So tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z इक्वल टू, इस tan को इधर ले गई, tan इनवर्स हो गया tan इनवर्स x प्लस y प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ये थर्ड फार्मूला हो गया. cot inverse x plus cot inverse y, when cot, since cot inverse x lies between its principal branch is 0 to pi. range of cot inverse x is 0 to pi. तो ये 0 से पाई के बीच में लाइज करता है. इसकी रेंज cot inverse x की मतलब मिनिमम वैल्यू 0 प्लस 0 और पाई प्लस पाई, 0 से 2 पाई के बीच में cot इनवर्स की रेंज होगी. माने आंसर किसके बीच में लाइज करना चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में. लेकिन ये जो फार्मूला है वो किस पर डिफाइन है, सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच पे. इट मीन्स 0 टू रेंज 0 टू पाई. हम यहाँ पर रेंज की बात कर रहे हैं कि x और y को हम जानते हैं. x और y किस पर डिफाइन है, cot इनवर्स x का डोमेन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी रियल नंबर माइनस व्हाट 0 एंड पाई. या फिर कह सकते हैं यदि प्रिंसिपल ब्रांच ले रहे हैं तो r माइनस 0, और यदि कंप्लीट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस एन पाई. इस पर डिफाइन है डोमेन, और इसकी रेंज जो है 0 टू पाई के बीच में प्रिंसिपल ब्रांच की. तो ये cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई, और इसी को यदि cot इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स वाई लेने तो इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स. तो इसको प्रूव करते हैं. लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, सो x इज इक्वल टू cot इनवर्स cot अल्फा. अगेन cot इनवर्स y इक्वल टू बीटा implies that y is equal to cot बीटा. Since we know that cot alpha plus beta, trigonometrical function of cot alpha plus beta, cot alpha into cot beta minus 1 upon cot beta plus cot alpha. Substitute value of alpha beta, cot alpha and cot beta, we get cot of alpha cot inverse x beta cot inverse y is equal to cot alpha x cot beta y minus 1 y plus x. अब इस cot को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर दें तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान y प्लस x. ये थे हमारे tan और cot के साइन कॉस इनवर्स. साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का मैं पहले बता दिया, साइन इनवर्स a प्लस बी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y. ये प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका था. 10 के बच गए थे तो इस लेक्चर में हो गए. अब आते हैं सब मल्टीपल. जो सब मल्टीपल हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, कि 2 साइन इनवर्स x, जहां पर हम साइन 2x लेते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसको क्या नोट किया जाता है, 2 साइन इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x. अब इसको प्रूव करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ही आवश्यकता होगी, जो दिया है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका 2 3 प्रूव करना है. सबसे पहले हम उसको सपोज करते हैं और अल्फा मान लेते हैं. माने इसको हम कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और फिर उसका इनवर्स ले लेंगे. तो हमें क्या मिल जाएंगे, इसके सब मल्टीपल के इनवर्स फार्मूले. लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, सो x इक्वल टू हो गया साइन अल्फा. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना साइन 2 अल्फा की. सिंस ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा. साइन अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है x, और कॉस अल्फा बराबर हम नोट कर सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. साइन अल्फा दिया हुआ है, कॉस अल्फा को लिख दिया हमने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस साइन को हम इनवर्स में कन्वर्ट कर दें तो 2 अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x square. But we know that alpha is equal to sin inverse x, so 2 sin inverse x is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square. This function also lies, since sin principal branch of sin inverse x lies between minus 1 to 1 for domain close interval minus 1 to plus 1 value of x, while range is lies between minus pi by 2 to
प्लस पाई बाई 2। तो ये किसके लिए डिफाइन है? सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच के लिए डिफाइन किए गए फार्मूले हैं। उसके आगे क्या होता है वो मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमें जो फार्मूला यूज होने हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 cos इनवर्स एक्स, सिमिलरली वी कैन राइट इट 2 cos इनवर्स एक्स। तो लेट cos इनवर्स एक्स, इसको मैंने प्रूव नहीं किया था, प्रूव कर दे रहा हूँ। cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, सो x इक्वल टू cos अल्फा। सिंस cos 2 अल्फा is equal to 2 cos square alpha minus 1, 2 cos square alpha minus 1, and we know that value of cos alpha is x, so substitute cos 2 alpha is equal to 2x square minus 1, implies that 2 alpha is equal to cos inverse 2x square minus 1, and so अल्फा वैल्यू ऑफ अल्फा क्या है? cos इनवर्स x। तो सो 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सभी को अपने को प्रूव करने के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करना। 2 tan इनवर्स x, इसका मतलब है लेट tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू tan अल्फा। 2 tan इनवर्स का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक tan 2 alpha. Since tan 2 alpha is equal to 2 tan alpha upon 1 minus tan square alpha, substitute value of tan alpha in terms of x. Now we get tan 2 alpha is equal to 2x upon 1 minus x square. Convert it into tan inverse. Then we get 2 alpha is equal to tan inverse 2. ये तो हमने कन्वर्ट, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा tan अल्फा वी गेट 2 tan इनवर्स x, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गई 2 tan इनवर्स x। 3 sin इनवर्स x, अगेन लेट sin इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, सो x इक्वल टू sin अल्फा। ये 3 है तो sin 3 अल्फा का फार्मूला। सिंस sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा, हम इसको नोट कर सकते हैं। 3 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा, साइन अल्फा एंड साइन अल्फा। साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स है और अल्फा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स, सो वी गेट 3 साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इज एक्स, 3x माइनस साइन क्यूब एक्स, साइन अल्फा क्यूब, साइन अल्फा का होल क्यूब मतलब 4x क्यूब। ये 3 साइन इनवर्स एक्स अल्फा मिल गया आप लोग को। 3 साइन इनवर्स एक्स, सॉरी 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आ जाते हैं अपन लास्ट का, ये 3 cos इनवर्स एक्स को भी इसी तरह से प्रूव कर लो कि cos इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, सो x इक्वल टू cos अल्फा। अगेन cos, since cos 3 alpha is equal to 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha. Substitute value of cos alpha and alpha, then we get 3 cos inverse x equal to cos inverse 4x cube minus 3x. Last 3 tan inverse x. Then 3 tan inverse x, let tan inverse x equal to alpha, so x equal to tan alpha. Since we know that tan 3 alpha equal to 3 tan alpha minus tan cube alpha upon 1 minus 3 tan square alpha. Tan alpha is equal to x, so substitute in the place of tan alpha x and in the place of alpha substitute tan inverse x. So 3 alpha equal to tan inverse 3 tan alpha minus tan cube alpha upon 1 minus 3 tan square alpha. Substitute value of alpha and tan alpha, we get tan 3 tan inverse x equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। ये छोटा सा लेक्चर था, तो ये कुछ फार्मूले और कवर हुए। इसके बाद अभी 2 लेक्चर और होंगे इसी पे।